کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کو لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے۔ اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں، سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں ہی کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ تھوڑی غور کرنا میری بات پہ، کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے، جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو جب اس نے مارا نا، جناب فاطمہ زہرا روتی ہوئی گھر آئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں۔ حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی۔ تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا نا، میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو، بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی۔ جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی۔ جب واپس لوٹی نا، دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے، کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔
महबूब रोए, मुझे सीने से लगाया, बेटे क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, वो मुझे कह रहे थे मारो, मैं तो मना कर रही थी पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ पकड़ के मारा है, पकड़ पकड़ के। अल्लाह के महबूब बात सुन के बड़े खुश हुए और हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, कहे अल्लाह अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। ऐ अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है, इसे खाली ना रखना। उलमा कहते हैं अबू सुफियान बदर नहीं, ओहद नहीं, हुदैबिया नहीं, फतेह मक्का तक आते रहे तलवारें लेके, पर अब करीम ने फरमाया तूने जितना दौड़ना है दौड़ ले, तुझे बेईमान नहीं रखना, कलमे की तौफीक देनी है, क्योंकि तूने सैयदा फातिमा से मोहब्बत फरमाई, उन्हें तौफीक देनी है कलमे की, क्योंकि सैयदा से। वो आखिर तक आते रहे। फरमाया अबू सुफियान दौड़ लो ना जहां दौड़ना है, दौड़ लो जहां दौड़ना है। तो वो जो बाकी सारे बेईमान मर गए और जनाब अबू सुफियान को तौफीक नसीब हुई, उन्होंने कलमा पढ़ा। मेरे रसूल पाक ने एक जंग में अपने घोड़े की लगाम तक उनके हाथ में दी, और वो जब ईमान साबित करना होता है जनाब अबू तालिब का, तो वो रवायत पढ़ते हो कि नबी करीम ने फरमाया कि मैं नबी हूँ, ये भी झूठ नहीं, और मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूँ, ये भी झूठ नहीं। तो इस हदीस के रावी भी तो जनाब अबू सुफियान ही है ना, वही तो इसको रवायत फरमाते। तो मेरे भाई जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिसने भी प्यार किया, जितना भी प्यार किया, जिस रंग में भी प्यार किया। और फिर उम्मी ने लिखा है, वो कहते हैं कि एक दिन हजरत बिलाल हबशी बैठे थे। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? फरमाते हैं एक दिन ना बैठे थे हजरत बिलाल हबशी, तो और भी कुछ गुलाम बैठे थे। तो हजरत बिलाल हबशी कहने लगे या रसूलल्लाह कोई हुक्म? और मैं नहीं, सारे काम आज के हो गए, हुजूर इजाजत है जाऊं? वो इजाजत लेके निकले तो एक सहाबी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये अक्सर इजाजत लेते हैं, बिलाल कहाँ जाते हैं? हुजूर ने फरमाया जा देखा जाके कहाँ जाता है, बात ही खत्म कर। वैसे ये भी एक मजा है अगर आप कभी ले तो। कुछ लोगों को ना सिर्फ तजर्बे से ही समझ आती है, आप जितनी मर्जी दलीलें दे उनकी अकल में बात उतरती। फरमाया तू जा जाके देखा। हजरत रूमी कहते हैं वो गए, देख के वापस आए, कहने लगे वो तो सैयदा फातिमा के घर चले गए। तो महबूब फरमाने लगे बिलाल बात को समझ गया है, मेरी मुराद तक पहुंच गया। जब फारिग होता है ना तो मेरी शहजादी की चक्की पीसने चला जाता है, जब फारिग होता है तो उनके घर चला जाता है, वहां जाके ड्यूटी करता है। वो समझ गया है कि महबूब ने फरमाया है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मेरे रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ रिश्ता है मोहब्बत। आपको एक बात बताऊं, इंसान जिससे बड़ा प्यार करता है ना उसे वो चीजें देता है जो उसे बड़ी अच्छी लगती है। तो आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, जब प्यार करते हैं, तो फिर आप ढूंढते हैं, चीज को तलाश करते हैं, आप तजस्सुस करते हैं। मैं अपने हजरत साहब के साथ अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ। तो मैंने एक संगी से कहा कि मैंने ना हाजिर होना है थोड़ी देर तक, तो कब आ जाऊं? तो वो कहने लगे कि मैं आपको फोन कर दूंगा। उन्होंने कहा फोन कर देना। तो मैं बाजार में निकल गया, छड़ी बड़ी प्यारी पकड़ा करते तो मैं छड़ी ढूंढने लगा मदीना शरीफ की गलियों से। मैंने कहा कि कुछ चीजें लज्जत लेने वाली होती हैं, वो तारी हो जाती है। मैं तलाश करता रहा। तो उन्होंने ना एक दो फोन मुझे किया कि अब आ भी जाओ। तो मैं जब वहां पहुंचा तो कहने लगे किधर रह गया था यार तू, अगर वो आराम करने लगते तो फिर क्या बनता? तो मैंने कहा छड़ी तलाश कर रहा था। तो कहने लगे इतनी सारी छड़ियां थी, को ले आनी थी। मैंने कहा किसी को देनी दिलानी होती तो ले आता ना, ये तो पेश करनी थी। तो ये मंजर कुछ और था ना, यहाँ रवैया कुछ थोड़ा सा और है। वो एक दानश्वर ने लिखा है ना, वो कहते हैं मैं वुजू करके निकला तो बीवी का दुपट्टा मैंने पकड़ लिया मुंह साफ करने के। तो अहलिया मुहतरमा कहने लगी अभी सवेरे ही धोया था। 2 कदम आगे बढ़ जाते तो अंदर तौलिया भी तो पड़ा ही था ना। वो कहते हैं चलो, मैंने कहा कि आइंदा एहतियात करूंगा। कहते हैं अगले दिन ही ना मैं वुजू किया तो मैंने अपनी अम्मा का दुपट्टा पकड़ा। अम्मा कहने लगी पुत्र ठहर जा जरा, ये धुला हुआ नहीं, मेरा अंदर धुला हुआ पड़ा है, मैं वो तुझे देती हूँ। अब फर्क है ना दोनों बातों में। उसने कहा अंदर मेरा धुला हुआ पड़ा है, वो मैं तुम्हें ला के देती हूँ। अब ये घर जाके आप बात बताएंगे तो मेरे खिलाफ ना कर देना सारा माहौल।
لیکن یہ کیفیت ہے نا, یہ کیفیت ہے نا. میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا, وقت پہ دے آنا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ, تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا, سارا زمانہ ہی دیتا ہے. یہ ہماری بہن بھی اپنے شوہر سے ایسے ہی کہتی ہے, کہتی ساری دنیا دیتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کون نہیں کرتا. لیکن بہن کو آپ 600 کا جوڑا دیا ہے نا کبھی پرانا بھی, تو وہ جب تک 5-7 پڑوسنوں کو بلا کے دکھا نہیں نہ لیتی اسے سکون کوئی نہیں آتا. اور وہ والا وہ پہنے گی اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے اور سارے زمانے کو بتائے گی. اور میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں 5000 کا نوٹ پکڑائیں کہ حضرت صاحب دعا کرنے, تو دعا یاد کی ہوتی ہے, رٹی ہوتی, پکی کیسٹ سب کے لیے. اللہ بھلا کرے, اللہ خیر کرے, اللہ ماشاء اللہ, وہ پکی کیسٹ پیروں نے یاد کی ہوئی ہے. اور میرا ایک دوست ہے, کبھی کبھی عذرائے محبت کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی ہیں, کیونکہ اللہ ماشاء اللہ کچھ کرتے بھی صرف دعا ہی ہے نا. ایک مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے, وہ کرتے نہیں. میں کیا کرتے اس لیے نہیں کہ انہوں عمدی کوئی نہیں, ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں, خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا, انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں, یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ. تو پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ, آپ 5000 2000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے. تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دینا دعا کرنا ذرا مشکل ہے, تو مسلح بھگو دیتی ہے رو رو, یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر. 7 سمندر پار پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا, یہ ایک رنگ ہے. جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں, خاص چیز, خاص سمجھ لو. تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں, پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا, کوئی ملے تو دوں نہ. تو امام صاحب مسکرانے لگے, کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا, تو حقدار تھا. جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے, ٹٹولتا پھرتا ہے. تو تھوڑا سا نا سمجھے چیز. ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی. اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا, اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا. وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا قابل ہے, لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے, تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے, 1-1 2-2 بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے, ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے, یہ ذہن کیوں نہیں بناتے. ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس, اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو. کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں, اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟ تو مخدومہ مسکرا پڑی, فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی, اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے 1 دے دے, اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں, سارے خیرات کر دیں. ان کی زندگی دیکھیں. اب ذرا سمجھیے گا بات. حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی, اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو, کام کر کر کے تھک جاتی ہوں, ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے. ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں, اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں, برتن دھونے والی الگ ہے, کپڑے دھونے والی الگ ہے. اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ, اور ہو سکتا ہے اگلے 3 منٹ میں وہ رو بھی پڑے, اگلے 3 منٹ میں وہ رو بھی پڑے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو. بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے. یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے, چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں, میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا, اس لیے بار بار ذکر آتا ہے, اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں, تربیت کے لیے. میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو,
एक कनीज ले आते हैं, लौंडी ले आते हैं, घर के कामकाज में तुम्हारा हाथ बटाएगी। किसके दरवाजे पे आई? वो रसूल जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं। सैयदा उस दरवाजे पे आई, बहुत सारे लोग बैठे थे तो बगैर बात किए वापस लौट गए। कुर्बान जाएं, मेरे हबीब खुद तशरीफ लेके गए। फरमाया फातिमा आई थी, कुछ कहना चाहती थी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अली ने फरमाया था कि हुजूर के पास एक जंग में कुछ लौंडियां आई हैं, तो अगर एक बांदी मुझे भी मिल जाए तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगी। मेरे महबूब करीम ने फरमाया फातिमा यारो सुनो, प्यार इतना के का जिगर का टुकड़ा है, लेकिन रंग क्या है तरबियत का। हुजूर फरमाने लगे फातिमा साहब सुफा का भी बंदोबस्त नहीं हुआ, उनको ज्यादा जरूरत है। ये लौंडियां, ये बांदियां, ये गुलाम उनके काम आएंगे। हाँ बेटे तू आई है, तूने कहा है, सवाल किया है, तो मैं तुझे खाली नहीं लौटाता। तू 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। रब तुझे गुलाम आजाद करने से ज्यादा अजर अता फरमाएगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं फातिमा का चेहरा खुशी से खेल उठा और कहने लगी देखो कमाल हो गया, हुजूर ने मुझे कितना बड़ा तोहफा अता फरमा दिया है। देखो ये बात कह के ना तो हुजूर ने एक बात पर मोहर लगा दी। फरमाया फातिमा जाओ जाके वज़ाइफ पढ़ो, चक्की तुमने खुद ही पीसनी है, आटा तुमने खुद ही गूंदना है। अब तुम्हारी खवातीन सवाल करती हैं कि मौलाना बताइए ससुर की खिदमत जिम्मे है हमारे, सास की खिदमत हमारे जिम्मे है। मैंने कहा काश तुम्हें मौका मिले तो तुम जाके सैयदा फातिमा बिनते असद से पूछो कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने उनकी क्या नौकरी की, क्या अंदाज इख्तियार किया, किस रंग में उनकी खिदमत की अपनी सास की। मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा तुमने काम खुद करने हैं। यारो याद रखना, प्यार इसका नाम नहीं कि आप किसी की आदतें बिगाड़ दें और इतनी बिगाड़ दें कि वो किसी के काबिल ना रहे, उसका किसी से ताल्लुक ना निभ सके, वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी वक्त ना गुजार सके। बल्कि प्यार तो ये है कि आप तरबियत कर दें, आप समझा दें, आप बना दें। हुजूर एक जिहाद के लिए तशरीफ ले गए, वापस तशरीफ लाए ना तो महबूब की आदत थी जब आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर आते थे और जब सफर की तरफ जाते थे तो आखिर में सैयदा फातिमा की तरफ जाते थे। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाना था। हुजूर जिहाद से वापस तशरीफ लाए तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के काशाना अक़दस में हुजूर तशरीफ लाए। हज़रत अली कहते हैं मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने सैयदा फातिमा को दिए, तो हज़रत फातिमा ने ना सोने की एक जंजीर, एक चेन, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, आपने ना वो बना के गले में डाली और घर में कुछ पर्दे लटकाए। मामला ये नहीं है कि मजबूरियां कितनी है, मामला ये है कि हमने वसाइल से ज्यादा मसाइल खड़े कर लिए और बेटियों को उस जगह लाके खड़ा कर दिया कि वो कंपैरिजन करती हैं। वो कहती हैं उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं। ये नसीहतें जब हम सुनते हैं तो हम जाके सीधा बीवी को सुनाते हैं, हालांकि ये तो बेटी को बताने वाली बात है जो जल्दी असर करेगी, ये तो बहन को बताने वाली बात है, ये तो यहाँ ये तो बात हम अपनी बच्ची पे करेंगे तो वो जल्दी असर कबूल करेगी। हुजूर तशरीफ लाए और पहला कदम रखा ना सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में, तो नबी करीम ने उनके गले के अंदर वो सोना देखा। औरत के लिए तो जायज है ना जितना मर्जी पहन ले। हुजूर ने वो सोना देखा, पर्दे लटके हुए देखे, सलाम ली और हुजूर वापस आ गए। जनाब फातिमा रोने लगी। मौला अली तशरीफ लाए तो कहा क्यों रोती हो। कहने लगी मैं बात समझ गई हूँ, ये मेरी चेन, ये मेरा सोना मेरे महबूब को पसंद नहीं आया, ये पर्दे हुजूर को पसंद नहीं आए, ये उतारिए, ये पकड़िए और हुजूर की बारगाह में ले जाइए और अर्ज कीजिए या रसूल अल्लाह जहां आपका दिल करे आप खर्च फरमाएं, ये दे दीजिए। जनाबे अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मैं लेकर के वाकई ही हुजूर की बारगाह में आया तो महबूब फरमाने लगे अली मेरी बेटी होके सोने से प्यार करने लगी है, दुनिया के माल की जानिब तवज्जो करने लगी है। गोया मेरे महबूब ने कयामत तक की बेटियों को ये बतला दिया, अगर तुम गरीब की बेटी हो तो रोना ना, वो कायनात के शहनशाह की बेटी है पर मैंने फिर भी उन्हें फकर का दर्स दिया है, गरीबी का दर्स दिया है। ये गुर्बत, ये फकर हुजूर का इख्तियारी है, ये हुजूर की पसंद है, ये नबी पाक की चाहत है। मेरे दोस्तों अपने घर में बड़ी सादगी से, बड़े वकार से और बड़े आराम से इंसान
जब कहीं जाता है ना, लोगों के साथ वक्त गुजारता है, तो ज़रूरी नहीं होता हर शख्स की हर बात से इत्तेफाक हो। और जब इंसान एक जगह रहता है तो राय का इख्तलाफ भी होता है। वो अलग बात है कि हम राय के इख्तलाफ को मुखालफत बना लेते हैं, मुकाबला बना लेते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, साहिब तवक़ात ने इसको लिखा है, कहते हैं कि किसी वजह से ना मेरा और जनाब फातिमा का इख्तलाफ राय हो गया। मैं वैसे अक्सर कहा करता हूँ कि मियाँ बीवी के झगड़े में गलती मियाँ साहब की होती है। घूरने लगे आप मुझे, वो इसलिए कह रहा हूँ कि औरत की अकल आधी होती है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना, तो फिर कंट्रोल किसने करना था? चले ना बोलें पर बात तो ठीक है ना, कंट्रोल किसने करना था? तो ये तो कहते हैं मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, फिर काम कैसे चलेगा? इसको कंट्रोल करना चाहिए था। इसको चाहिए था कि ये हौसला बड़ा करता, ये दिल बड़ा करता। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं तो मुतलक लेनान हूँ, किसी की जरूरत है मेरी सल्तनत में बोले, ऐसा हो सकता नहीं। ये हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये तो मकाम है ना भाई, यहाँ तो आपको कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मौला अली कहते हैं किसी बात में ना इख्तलाफ राय हो गया तो बात जरा बड़ी, तो मुझे जलाल आ गया। हजरत मौला अली फरमाते हैं, शेर खुदा, ये बड़े लोग हैं जो बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बंदा होता है बड़ी बात करता है। हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे लगता है आज बात मेरी वजह से बढ़ गई है, आज बात बड़ा ही मुश्किल काम है ये मान लेना कि आज मुझसे गलती हो गई। एक कायनात का बड़ा ही मुश्किल काम है, आप यकीन करें। और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग देखे हैं कि 2 मिनट के लिए ये कहने को तैयार नहीं कि हम भूल गए थे। बड़े बड़े सियाने बंदे। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने एक मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे नहीं इसका जवाब आता। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो तो सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे हारून रशीद चुप कर, अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर मैं खुदा होता, देखूंगा तहकीक करूंगा फिर बताऊंगा। ये क्या? और हजरत अली शेर खुदा का कौल है। आप फरमाया करते थे बड़ा आलिम वो होता है जिसको बात का पता ना हो तो बयान ना करे, कहे मैं पूछ के बताऊंगा। दलील क्या है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो अल्लाह से डरते हैं। इसलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाया करते थे कि कसरत किलो काल का नाम इल्म नहीं, रब करीम से ज्यादा डरने वाला बड़ा आलिम होता है। कितना डरते हैं अल्लाह से वो बड़ा आलिम। तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि बात मेरी वजह से बढ़ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला पहुंची तो महबूब तशरीफ लाए। नबी पाक ने बात सुनी, अल्लाह ने अपने महबूब को गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, हर गैब की कुंजियां अल्लाह ने अपने हबीब को दी। तो हुजूर ने बात सुनी तो समझ गए कि आज बात अली की तरफ से बढ़ गई है। मैं बात खत्म करने लगा हूं, मैं भी बात अली की तरफ से बढ़ गई। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं सारी बात हुजूर ने सुनी, फिर हुजूर ने दुआ दी, मोहब्बत की दुआ दी। ये जो हम दाएं बाएं वाले हैं ना, एक बात और कर दूं, हम अगर चाहें तो मियाँ बीवी सुखी रह सकते हैं। हुजूर ने लानत फरमाई है उस शख्स को पर जो बीवी को मर्द के खिलाफ या मर्द को बीवी के खिलाफ उकसाता है। आप एक जुमला कह के साइड पे हो जाते हैं, उन बेचारों ने रहना होता है 24 घंटे साथ, आप उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। और अगर आप थोड़ी सी शफकत करें, कहीं नहीं तेरी बीवी तो बड़ी अच्छी है, तो उनके, और मैंने देखा है कि जिन घरों में मियाँ बीवी का प्यार होता है ना, उनमें बच्चे भी बड़े सुखी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ खींचातानी हो तो घर में सारी सहूलियात होती हैं, सुकून कोई नहीं होता। अब मेरे महबूब ने क्या फरमाया, तवज्जो है मेरी बात पर? ये घर बनाने का बहुत बड़ा नुस्खा है, ये बच्ची के माँ बाप को भी इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चे के भी। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना, हजरत अली कहते हैं कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि बात मेरी वजह से बढ़ी। हुजूर ने दुआ भी दे दी और फिर सैयदा फातिमा का बाजू पकड़ के कोने में ले गए और हुजूर फरमाने लगे फातिमा अली तुम्हारे शौहर हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात तस्लीम की जाए। अल्लाह करे आपको समझ आए। बेटी का बाप ये बात समझे और बेटे का बाप ये बात समझे। फरमाया जरूरी नहीं तुम्हारी हर बात मानी जाए, तुम्हारे शौहर हैं, अगर कभी को बात कहें भी तो सुना करो। वो भी सैयदा थी, ये नहीं अर्ज की कि अब्बा जी मेरी तो राय सुन लें, आप बात ये नहीं कोई बात का। हुजूर ठीक है, आज के बाद कभी मौका नहीं दूंगी। हजरत अली कहते मैं दूर खड़ा था पर बाप बेटी की ये बात सुनी तो मैं रो पड़ा। मैं दौड़ के करीब आया और करीम रसूल का हाथ पकड़ के मैंने सीने पे रखा।
मैंने कहा महबूबा तेरे ऊपर भी कुर्बान जाऊं और तेरे हुस्ने तरबियत पर भी कुर्बान जाऊं और तेरी शहजादी के भी सदके जाऊं। कहा या रसूल अल्लाह फातिमा से कुछ ना कहे, अली वादा करते आज के बाद शिकायत नहीं आएगी। ये रंग दिया हुजूर ने वो घर चलाने के लिए, ये रंग दिया है। ये करबला का वाकया हादसाती नहीं। मुझे बाहर से एक दोस्त ने फोन किया, बाहर से, कहने लगे जनाब आपसे एक बात करनी है। 3 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो इंसान की तबीयत ही इतना बर्दाश्त नहीं करती, तो कैसे भूखे प्यासे रहे। मैंने कहा ये बताओ कि अगर बचपन से प्रैक्टिस हो फिर बंदा रह सकता है कि नहीं। कहने लगे जी फिर तो रह सकता है। तो मैंने कहा सैयदा फातिमा की तरबियत थी। इमाम हसन कहते हैं रोजे रखे थे हमने भी, बात लंबी है लेकिन मैं इशारा दे रहा हूँ। कहते हैं रोजे रखे थे मौला अली ने भी, सैयदा फातिमा ने भी, इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने भी। और कहते हैं चंद रोटियां जौ पीस के मेरी माँ ने खुद पकाई। ओ बड़ा ही मुश्किल काम है यार, बड़ा मुश्किल। अपने बच्चे के मुंह से हलक से निवाला छीन के किसी को देना, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा। फरमाते हैं रोटियां जब सामने आ गई, ऐन इफ्तार का जो वक्त होता है ना, कोई और चीज सूझती नहीं, बिल्कुल नहीं सूझती। लेकिन फरमाते हैं दरवाजे पे मिस्कीन ने दस्तक दी तो सैयदा फरमाने लगी वो हमसे ज्यादा हकदार है। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, ऐन इफ्तार के वक्त यतीम आ गया। कहते हमने पानी और खजूर से इफ्तार किया तो वो फिर उसी को दे दिया। तीसरा दिन आया तो कैदी आ गया, फरमाते हैं उसी को दे दिया। 3 रोजे गुजर गए पर खजूर और पानी पे गुजारा रहा। और मैंने कहा ये करबला का मामला हादसाती नहीं था। सैयदा पाक ने शहजादों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना सिखाया था। तो जब इस तरह के लोग मैदान में खड़े होते हैं फिर जमाने का कोई यजीद भी उनकी गर्दनें झुका सकता। उनके किरदार से सबक हासिल करें। मेरी राय यह है कि जिस घर में समझदार औरत दाखिल हो जाती है वो घर जन्नत नजीर बन जाता है। बहुत बड़ा किरदार है खातून खाना का। आज इस मुबारक मौका पर, इस खूबसूरत इज्तिमा में, इस मरकज में बैठकर जरूर चंद गुजारिशात जो की हैं इन पर गौर जरूर करना। देखना अगर हमारे बच्चे बद अखलाक रह गए तो उनकी बद अखलाकी बहुत सारे लोगों को उनसे तोड़ देगी। उनके अपने उनकी आदत की वजह से उनसे दूर हो जाएंगे। और अगर हमारे बच्चे आसानियों के आदी हो गए तो मैंने देखा है बड़े बड़े मरकज़ों में बैठ के भी शहजादे कुछ ना कर सके। लेकिन जो काबिल लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था पर काबिलियत थी ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त आया तो उनकी ज़ौजा उनसे कहने लगी बच्चों के लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया, क्या सोचेंगे। आपने फरमाया बुलाओ मेरे बेटों को। बच्चों को बुलाया तो सामने बिठा के कहने लगे बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, तुम्हारे लिए कुछ बना नहीं सका, डर गया। क्या मतलब। फरमाने लगे कि मेरे सामने रास्ता था कि मैं दोज़ख की परवाह न करता तो माज़अल्लाह बड़ा कुछ बनाता। तो बेटे मैं बुज़दिल था, मैं डर गया, कुछ नहीं बना सका, मुझे माफ़ कर देना। अब के बच्चे कहने लगे अब्बा जी पहले भी लोग अमीर गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, पर उनकी औलादों से सलाम कोई नहीं लेता। लेकिन हम जिस गली से गुजर जाते हैं ना, लोग दुकानें छोड़ के सलूट करने आ जाते हैं। तो हमें लगता है यहाँ अल्लाह आपकी वजह से फजल कर रहा है तो कयामत में भी आपकी वजह से अल्लाह फजल फरमाएगा। इनको किरदार दे के जाओ। किरदार, हमारी दौलत, हमारी औलादें अगर ये संवर गई तो बड़ा कुछ बच जाएगा, और अगर ये ना संवरी तो बड़ा कुछ बना हुआ भी बिगड़ जाएगा। वो अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं, और नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।